नई दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए नेताओं की बैठक को संबोधित करते हुए तेलुगु देशम पार्टी के नेता और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व के अभिनंदन से जुड़ा एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया। इस अवसर पर शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने भी प्रधानमंत्री के शानदार नेतृत्व की प्रशंसा की। To table before this August House gathering, resolution of gratitude, a historic tribute to India's longest-serving, continuously elected Prime Minister Sri Narendra Modi ji. The right leader at the right time, at the right place, Narendra Modi ji as Prime Minister of this great nation. That is his strength. He is both our anchor and our innovator. Working with a single agenda, that is nation first, a principle that all of us has constantly keep it in mind. Entire nation has to follow. 21st century belongs to Narendra Modi ji. 2001 he elected as Chief Minister. Now nearly 25 years. Sometimes I am also introspecting myself. How is able to live up to the expectations of the people? That is very, very important. That is the leadership Honorable Prime Minister is having. Today, the world is in turmoil. Wars, fractured supply chains, energy markets in turmoil, facing aging problems, major economies slowing, uncertainty on every continent. This very year, conflict near the Strait of Hormuz pushed oil towards $144 a barrel. We are importing nearly 85% crude oil. The disruption could have been more severe, yet inflation held at around 3.5%, among the lowest in all major economies in the world. That is the leadership our Honorable Prime Minister is providing. A proven performer, as Chief Minister, and now as Prime Minister, Narendra Modi ji continues to demonstrate the same spirit, same creativity, same spirit of innovation. Never I have seen him as tired for the last so many years. Always he is energetic. Not only energetic, he will give energy for others. That is how he is maintaining himself. First time, Narendra Modi ji is equal to any leader in the world. I can say very clearly, all surveys are indicating who is very popular leader globally. That is our Honorable Prime Minister. That is our pride for the nation. We are very happy for that. Sir, really, that is wherever you go, Indians and India is well respected because of you, sir. Our goal is to become #1 economy globally. That is possible only through our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. It is going to happen one day. This is India's defining moment, the beginning of a golden era. Our faith in his leadership is complete. Our commitment to the people unwavering. Our resolve to build a Vikasit Bharat by 2047 unshakable. Vande Mataram, Jai Bharat, Jai Hind.
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल, सक्षम और दूरदर्शी नेतृत्व में आज हमारा भारत विकास और समृद्धि के नए क्षितिज को छू रहा है। देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक शासनाध्यक्ष के रूप में उनके इस ऐतिहासिक और गौरवशाली कार्यकाल के लिए जो अभिनंदन प्रस्ताव लाया है, महाराष्ट्र और शिवसेना पार्टी उसका हृदय से पूरी ताकत से समर्थन करती है। मोदी जी के इसी मजबूत नेतृत्व के बदौलत आज देश विकसित भारत बनने की राह पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आज भारत सिर्फ प्रगति ही नहीं कर रहा है, बल्कि प्रगति की नई परिभाषा लिख रहा है। हमारे लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री जी केवल एक नेता नहीं है, बल्कि राष्ट्र सेवा के एक तपस्वी है। उनका नेतृत्व तेजस्वी और त्रिकालदर्शी है। इस महान नेतृत्व की तपस्या के सफल होने का, तपपूर्ति का आज यह गौरवशाली दिन है। इसलिए हम सब लोग खुश हैं। एनडीए के सभी घटक पिछले 12 वर्ष केवल सत्ता के नहीं थे, बल्कि राष्ट्र सेवा की अखंड और अनवरत तपस्या के थे। 12 वर्षों का चमकदार, बेदाग और निष्कलंक कार्यकाल इतिहास में दुर्लभ ही देखने को मिलता है। एक भी दिन आराम नहीं, एक भी पल खुद के लिए नहीं, हर क्षण हर पल सिर्फ राष्ट्र के लिए समर्पित हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आप एनडीए के गठबंधन दलों के नेताओं के साथ सिर्फ औपचारिक और राजनीतिक संबंध नहीं रखते, आपका हमारे साथ एक आत्मीय और पारिवारिक रिश्ता भी है। इस बात का अनुभव कई लोगों ने लिया होगा, मैंने भी खुद लिया है। एक समय था जब देश की प्रगति का मूल्यांकन आजादी से पहले और आजादी के बाद के आधार पर होता था, लेकिन आज देश में एक नई सोच स्थापित हुई है। अब लोग कहते हैं 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत। यह परिवर्तन अपने आप नहीं आया, इसके पीछे दिन रात काम करने वाला नेतृत्व है। एक ऐसा नेतृत्व जिसने 12 वर्षों में एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। एक ऐसा नेतृत्व जिसने व्यक्तिगत दुख को भी राष्ट्र धर्म से ऊपर नहीं रखा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह आज ये केवल नारा नहीं, बल्कि भारत के विकास का आधार बन चुका है। तो आप देख रहे थे भारत मंडपम में एनडीए नेताओं की जो बैठक महत्वपूर्ण हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल 12 वर्ष पूरे होने पर उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन भी किया गया और उनके कुशल नेतृत्व की सराहना की गई। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मेरा इन्वेस्टमेंट डूब गया, मेरे रिटर्न्स रुक गए, मेरा अकाउंट हैक हो गया। अब क्या करूं? कौन हेल्प करेगा? कहां करूं शिकायत? आरबीआई के सचेत पोर्टल पर। क्या? ऑनलाइन फ्रॉड्स, फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, अनऑथराइज्ड डिपॉजिट्स और अन्य फाइनेंशियल क्राइम्स की शिकायत यहां करें, जिससे संबंधित संस्था तक भेजा जाएगा ताकि सही कार्यवाही हो। आरबीआई कहता है, सचेत रहें, सुरक्षित रहें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। भारत के इतिहास में निरंतर निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर सर्वाधिक लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाने पर एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। दिल्ली के भारत मंडपम में हुए समारोह में एनडीए दलों के शीर्ष नेता शामिल हुए। इन सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई और शुभकामनाएं दी। ये समारोह देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले प्रधानमंत्री के निर्णायक और मजबूत नेतृत्व के सम्मान में आयोजित किया गया।
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की गई है। लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर कैबिनेट सहयोगियों ने उनका अभिनंदन किया। कैबिनेट के सभी सदस्यों ने खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया और उनके नेतृत्व के प्रति आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जून को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। नरेंद्र मोदी भारत के 14वें और वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, जो 26 मई 2014 से लगातार प्रधानमंत्री के पद पर बने हुए हैं। जून 2024 में उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वो लगातार तीसरी बार जीतने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। आज उनके कार्यकाल के 4399 दिन पूरे हो गए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम था। वो 4396 दिनों तक इस पद पर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का कीर्तिमान स्थापित किया है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का जिक्र किया और कहा कि सार्वजनिक पद पर सबसे लंबे समय तक रहना उस भरोसे की पुष्टि है जो भारत के लोगों ने लगातार चुनावों में आपके नेतृत्व पर जताया है। हमारे जैसे विशाल, विविध और जीवंत देश में जनता का भरोसा किसी नागरिक को मिलने वाले सबसे बड़े सम्मान में से एक है। इतने वर्षों में आप पर यह भरोसा बार बार कायम रहा है, जो हमारे गणतंत्र की लोकतांत्रिक यात्रा के एक शानदार अध्याय का प्रमाण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिखा कि आप पर लोगों का भरोसा हमारी लोकतांत्रिक यात्रा का शानदार अध्याय है। आपके नेतृत्व में भारत ने अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय परिवर्तन देखे। वित्तीय समावेशन से करोड़ों नागरिक औपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़े, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी और नारी शक्ति विकास का नेतृत्व कर रही है। पिछले 12 वर्षों में तकनीक आधारित शासन पारदर्शी और सुलभ बना है। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देशवासियों तक पहुंचा। विशाल, विविध और जीवंत देश में जनता का भरोसा सबसे बड़ा सम्मान है। भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर हिस्सों को विकास से जोड़ा गया। प्रतिभाशाली युवाओं की रचनात्मकता और ऊर्जा को नई दिशा दी गई। भारत वैश्विक समुदाय में अपना सही और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी। एक्स पर अपने संदेश में गृह मंत्री ने लिखा कि देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में जनता की सेवा करने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मोदी जी के ये 12 वर्ष भारत के स्वाभिमान, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करने के रहे हैं। नई संसद का निर्माण हुआ, 3 नए कानून लागू हुए, नई शिक्षा नीति और मातृभाषाओं में मेडिकल और इंजीनियरिंग शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ तथा आत्मनिर्भर भारत हर भारतीय का संकल्प बना। इन 12 वर्षों में एक तरफ देश की सीमाएं सुरक्षित हुई, कश्मीर से 370 समाप्त हुई, राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद का अंत हुआ और आतंकवाद पर नकेल कस हर आतंकी घटना का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। वहीं देश की सामूहिक शक्ति ने हीनता के भाव से बाहर निकलकर अपनी विरासत, संस्कृति और सामर्थ्य पर गर्व करना सीखा। देशवासियों को सुरक्षित बनाना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान और गौरव को लौटाना मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज नया भारत पूरे आत्मविश्वास के साथ विश्व के हर मंच पर अपनी पहचान स्थापित कर रहा है और दुनिया एक सक्षम, सशक्त तथा नए भारत के उदय की साक्षी बन रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने उनकी सराहना की है। उन्होंने कहा कि देश के सबसे लंबे समय तक लगातार चुने गए प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देना भारत के लिए गौरव की बात है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में कई ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, जिनका उल्लेख देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हमारा देश के लिए ये गौरव का पल है कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में 12 साल भी कंप्लीट हो गया है और लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, एक चुने हुए प्रधानमंत्री सबसे लंबा कार्यकाल तक इस देश का प्रधानमंत्री के रूप में काम करना, ये एक ऐतिहासिक पल है। इस कार्यकाल में जो काम हुए हैं हमारे देश के लिए, मैं मानता हूं कि हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि भारत इसी समय मोदी जी के कार्यकाल में विकसित भारत की तरफ हमने अपना कदम रखा है। देश के सबसे लंबे समय तक लगातार चुने गए प्रधानमंत्री के तौर पर सेवा करने के खास सम्मान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बधाई दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई, जो आज भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए हैं। हाल के हफ्तों में रोम में फिर से मिलना और एक खास रणनीतिक साझेदारी की संयुक्त रूप से शुरुआत करना खुशी की बात रही है। ये साझेदारी भविष्य की ओर देखते हुए हमारे देशों और हमारे लोगों के लिए नए अवसर पैदा करने पर केंद्रित है। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने संदेश में लिखा, मैं अपने बड़े भाई और प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी जी को भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने और लगातार 3 बार लोकतांत्रिक जनादेश के साथ दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प के साथ भारत का नेतृत्व करने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई देता हूं। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र का निरंतर विश्वास हासिल किया है। उनके शासनकाल में लाखों लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। बड़े पैमाने पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया गया है और अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप तेजी से आर्थिक प्रगति हुई है। वो ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती और निरंतरता के साथ उठाने वाले एक सशक्त नेता रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने अपने संदेश में लिखा, भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई। मालदीव आपसी सम्मान, संप्रभु समानता और साझा हितों के आधार पर भारत के साथ सहयोग को और मजबूत करने के लिए तत्पर है। प्रधानमंत्री मोदी के लगातार 12 साल तक सत्ता में रहने को लेकर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने लिखा कि भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई। ये उपलब्धि उनके वर्षों की समर्पित जनसेवा और भारत के विकास, समृद्धि और वैश्विक मंच पर उसकी स्थिति को बेहतर बनाने के उनके नेतृत्व का प्रमाण है। मलेशिया भारत के साथ अपनी करीबी और पुरानी दोस्ती को बहुत महत्व देता है। मैं दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए नए अवसर बढ़ाने की दिशा में सहयोग जारी रखने के लिए उत्सुक हूं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निरंतर सफलता और भारत के लोगों के लिए शांति, प्रगति और समृद्धि की कामना करता हूं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल में न सिर्फ ब्रिक्स बल्कि दुनिया के तमाम देशों के बीच भारत के संबंध विश्वसनीय और मजबूत हुए हैं। ये कहना है इंदौर में चल रही ब्रिक्स कृषि कार्य समूह की बैठक में शामिल होने आए मेहमानों का। भारत में आए ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों का कहना है कि भारत के साथ कई देशों के व्यापारिक संबंधों को नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में मजबूती मिली है। ब्रिक्स का विस्तार हो या इनके मुद्दों के समाधान की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। India is a democracy. I think the continuation of so many years of Mr. Modi is an indication of an excellent work. I don't follow closely the Indian politics, but I have to say that being a democracy is something of great value in today's world. We are building our trade, especially between India and South Africa. There's a lot of commodities exported from both countries to each other. And we have constant meetings. We had a meeting last week and also yesterday to try and promote trade even more between the two countries. Prime Minister Modi, as you know, with my president Cyril Ramaphosa, have come a long way as very good friends, negotiating very large things. So we admire the fact that he has, been looking after your country for so many years, and the fact that we are now well established into the BRICS. The BRICS is joined now by 5 more BRICS. We had 5 BRICS in the start. Now we've got 10 BRICS. And Prime Minister Modi is one of the founding members with a vision to make sure that the world is a fair place, the world is a kind place, the world is a place where we can sue into the future rather than making decisions for today. हमारा दोनों देश प्रधानमंत्री जी भी पिछली बार हमारा देश गया था, अच्छा स्टेट विजिट था। हमारा प्रधानमंत्री इथियोपिया का प्रधानमंत्री भी अच्छे से स्वागत कर दिया मोदी जी के लिए। दोनों देशों बीच में अच्छा रिश्ता है। Food security is fundamental. I mean, if you have good food, then that means there is less disease. That's what we say in South Africa, an apple a day keeps the doctor away. So the agriculture is very pivotal for the food, the importance of the health of the nation. So we are here discussing as these big countries in the global south that are now challenging those, other countries in the West in terms of how do we make sure that the agenda of the developing countries, the South-South collaborations, make an impact and a voice in the global space, especially these days of the geopolitics. देश आज एक अभूतपूर्व राजनीतिक कीर्तिमान का गवाह बना है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के दशकों पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सबसे लंबे समय तक देश का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ये पंडित नेहरू के पुराने दौर से निकलकर आज के आधुनिक, आत्मनिर्भर और विश्व मित्र बनते भारत की महागाथा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 10 जून 2026 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ये तारीख नए अध्याय के तौर पर दर्ज हो गई है। स्वतंत्र भारत में जन्मे देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 4,399 दिनों तक मां भारती की सेवा कर नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के लगातार सेवा काल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। इस ऐतिहासिक शिखर तक पहुंचने का उनका ये सफर तब शुरू हुआ जब साल 2014 के आम चुनाव में एक अभूतपूर्व और शानदार जीत के साथ 26 मई 2014 को उन्होंने पहली बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। समय बदला, चुनौतियां आईं, लेकिन पीएम मोदी के प्रति जनता का ये अटूट विश्वास साल दर साल गहरा होता गया, जिसने पहले 2019 और फिर 2024 के आम चुनाव में लगातार जीत की ऐतिहासिक हैट्रिक लगाकर भारतीय राजनीति के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया। इन 4,399 दिनों में उन्होंने राष्ट्र प्रथम के संकल्प के साथ सबका विकास और सबका विश्वास की भावना के साथ जन कल्याण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी।
समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक जन कल्याण योजनाओं का लाभ पहुंचाने का उनका अथक प्रयास अनवरत जारी है। वैसे उनका ये प्रयास तब से जारी है जब 2001 में उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की कमान संभाली थी। फिर उन्होंने सुशासन और विकास की जो नई परिभाषा लिखी उसे गुजरात मॉडल के तौर पर जाना गया, जिसने न केवल उद्योगों को आकर्षित किया बल्कि बुनियादी ढांचे और कृषि में भी क्रांतिकारी बदलाव किए। मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन पर सबसे ज्यादा जोर दिया, चाहे वो स्वागत कार्यक्रम के जरिए ऑनलाइन जन सुनवाई हो या प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता। तकनीक को जन जन तक पहुंचाने की इसी दूरदर्शी सोच ने आगे चलकर डिजिटल इंडिया की मजबूत नींव रखी और गुजरात विकास का यही सफल मॉडल उनकी राष्ट्रीय लोकप्रियता का आधार बना। 2014 में 3 दशक बाद केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। खास बात ये भी है कि देश में पहली बार एक स्थिर और निर्णायक सरकार का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति ने किया है जो नेहरू गांधी परिवार से नहीं है और उनकी राजनीतिक जड़ें भी कांग्रेस से दूर दूर तक जुड़ी हुई नहीं हैं। ये केवल समय की गणना नहीं है बल्कि भारतीय लोकतंत्र के 2 ऐतिहासिक छोरों की गाथा है, क्योंकि पंडित नेहरू ने आजादी के तुरंत बाद ऐसे दौर में शासन किया जब देश की जनसंख्या कम थी, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सीमित थी, एक पार्टी का प्रभुत्व था और राजनीतिक संरचना केंद्रीकृत थी, जबकि पीएम मोदी ने 146 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या वाले 2,500 से ज्यादा राजनीतिक दलों वाले अत्यधिक प्रतिस्पर्धी, राजनीतिक रूप से खंडित और आर्थिक रूप से जटिल दौर में लगातार 3 बार जनादेश हासिल किया है। नेहरू युग के दौरान अत्यधिक राज्य नियंत्रित आर्थिक मॉडल और सीमित निजी उद्यमों के चलते भारत की औसत जीडीपी वृद्धि लगभग 3.5 से 4% रही, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने उद्यमियों, स्टार्टअप्स और वेल्थ क्रिएटर्स को राष्ट्रीय विकास का मजबूत भागीदार माना। और यही कारण है कि सदी की सबसे बड़ी वैश्विक महामारी और भू राजनीतिक संकटों के बावजूद भारत ने न सिर्फ दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा, बल्कि 6.5 से 7% की विकास दर भी हासिल की। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक को चलाने के साथ साथ खाद्यान्न का निर्यात भी करता है। इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि पंडित नेहरू के कार्यकाल के दौरान अत्यधिक रक्षात्मक नीति के चलते देश को 3 प्रमुख सैन्य मोर्चों पर लहू बहाना पड़ा, जबकि आक्रामक रक्षा सिद्धांत के बल पर पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान भारत किसी भी पूर्ण पारंपरिक युद्ध में नहीं उलझा, क्योंकि अब भारत आतंक के आकाओं को घर में घुसकर मारता है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक और पिछले साल हुआ ऑपरेशन सिंदूर इसकी मिसाल है। मतलब साफ है, ये केवल 2 युगों के दिनों की गणना नहीं है, बल्कि भारत की बदलती हुई मानसिकता की महागाथा है। ये बदलाव भारत के आधुनिक, आत्मनिर्भर और वैश्विक विकास इंजन के रूप में उभरने का ऐतिहासिक प्रमाण है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान यानी PMSMA के 10 वर्ष पूरे होने पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 10 years of PMSMA, a decade of promoting safe motherhood अभियान की शुरुआत की। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अभियान की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए मातृ स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए बदलावों का उल्लेख किया। 9 जून 2016 को शुरू किए गए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। अभियान की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का विशेष डाक टिकट जारी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि मातृ स्वास्थ्य से जुड़ी विभिन्न सरकारी पहल के कारण देश में मातृ मृत्यु दर में 86% तक की कमी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत अब तक 7.5 करोड़ से अधिक निःशुल्क प्रसव पूर्व जांचें की जा चुकी हैं। 10 साल की यात्रा में हमने एक तो सुरक्षित गर्भावस्था में मातृत्व की सुरक्षा की व्यवस्था
को और सुदृढ़ किया है, स्ट्रेंथन किया है और स्वस्थ भारत की नींव को और मजबूत किया है। यह निश्चित रूप से हम पिछले 10 साल की यात्रा में देखते हैं। गर्भावस्था में किसी माता की हम 5 बार एंटीनेटल चेकअप करते हैं। जिस 5 बार के एंटीनेटल चेकअप में 1 बार स्पेशलिस्ट के द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत 9 तारीख को यह जरूर होना चाहिए, इसकी चिंता की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ने उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की समय रहते पहचान और उपचार सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत 9 जून 2016 को की थी और ये उनके मार्गदर्शन में इसको हमने कंसेप्चुअलाइज किया था। इसके 2 अनूठे फीचर्स हैं, एक तो पीपीपी और दूसरा हमारी जो प्रेग्नेंट मदर्स थी, जो हमारी एक्सपेक्टिंग मदर्स थी, उनको स्पेशलिस्ट का अटेंशन मिला। ये एक बहुत ही अनूठा प्रयोग था और इसका लाभ हम आज देख रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी भारत के सुरक्षित मातृत्व अभियान की उपलब्धियों की सराहना की। संगठन का मानना है कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत ने पिछले वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। WHO is very pleased to congratulate the government of India on its achievement in the reduction of maternal mortality through this 10 years old program, and there's a number of elements that have been very impressive. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रत्येक माह की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की विशेष स्वास्थ्य जांच की जाती है। पिछले 1 दशक में ये अभियान सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देने और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरा है। अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में उनके निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक निरंतर सेवा देने के ऐतिहासिक कीर्तिमान का स्वागत करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर 4,399 दिनों की निरंतर सेवा पूरी कर भारत में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कैबिनेट बैठक में गरीब कल्याण, युवा सशक्तिकरण, महिला नेतृत्व, नवाचार और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना की गई। श्री नरेंद्र मोदी जी निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि तक निरंतर देश की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने निर्वाचित पीएम के तौर पर 4,399 डेज की निरंतर सेवा का कीर्तिमान स्थापित किया है, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, जो बहुत ही साधारण परिवार से आए और जिन्होंने अपने कार्य से, अपने विचार से और अपने नेतृत्व के एक साक्षी रूप से जिस तरह से देश को आगे किया, उनको इस देश ने विश्वास दिया। उनको 140 करोड़ देशवासियों ने उन पर विश्वास जताया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 3 महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 4,703 करोड़ रुपए की 3 प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने 2,169 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद मेट्रो फेज 2A विस्तार परियोजना को स्वीकृति दी है। इसके अलावा अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर के लिए 1,299 करोड़ रुपए और आवासीय परिसर के लिए 1,235 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए।
केंद्रीय कैबिनेट ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के फेज 2A को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट तक 6.032 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। परियोजना की अनुमानित लागत 2169.04 करोड़ रुपए है। ये कॉरिडोर बेहतर कनेक्टिविटी, यातायात जाम में कमी को सुनिश्चित करेगा। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है। इसमें 5 स्टेशन होंगे, 6 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है। और जो इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट है कि सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बन रहा है। सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जो बन रहा है, उसको एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी इस मेट्रो के माध्यम से मिलेगी। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती में 2 प्रमुख केंद्रीय अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल पूल ऑफिस अकोमोडेशन और जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। आपको बता दें कि CGGPOA परियोजना पर लगभग 1299 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जबकि GPRA के निर्माण पर करीब 1235 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन परियोजनाओं के तहत आधुनिक कार्यालय और आवासीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी। अमरावती नया शहर बन रहा है, तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। के लिए करीब 5.5 एकड़ की ज़मीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है। इसके लिए करीब 17 एकर्स की लैंड राज्य सरकार ने दी है और 1500 रेजिडेंशियल क्वार्टर्स इसके लिए बनेंगे। और बुलेटिन में यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। Hi sir, can I take your order? Cold coffee for me. French fries. कैपुचिनो, क्रिस्पी बर्गर। Your total is 723. UPI हम तुझे ऑनलाइन कर देंगे। निकालेगा? हाँ है। Sorry sir, no change. क्या यार, अभी भी कैशबैक का है? Change क्या था? Change कर. डिजिटल पेमेंट सीख। Next, तेरी ट्रीट। भारत करता है डिजिटल भुगतान। हर लेन देन अब है आसान। आप फिक्र मत कीजिए खन्ना साहब, वादा तो कर दिया, पर ये पहुंचेगा कैसे? एक दिन में मार्कशीट कैसे मिलेगी शालिनी को? कल संडे, मॉम की दवाइयाँ कल तक नहीं पहुंची तो पहुंच जाएगा। जो भी तुम चाहोगे वही पहुंचाऊंगा, एक दिन में डिलीवरी करके आऊंगा। सबको पता है कि मैं सबका दोस्त हूँ, हर सामान टाइम से पहुंचाने की ये बात है, दिल को दिल से मिलाने की ये बात है। ये है भारतीय डाक की नई 24 स्पीड पोस्ट सेवा। अब आपकी हर पोस्ट की गारंटीड डिलीवरी सिर्फ 1 दिन में, OTP की अतिरिक्त सुरक्षा के साथ। 24 स्पीड पोस्ट, भरोसा आपका, वादा हमारा। डाक सेवा, जन सेवा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। घर का खर्च चलाने के लिए रोहन की पढ़ाई वाली FD तोड़नी पड़ी और उसके डॉक्टर बनने का सपना भी। काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस से 410 रुपए महीने से शुरू। दीदी, रोहिणी को क्या दूं बर्थडे गिफ्ट? ये रुपए डिजिटल गिफ्ट वाउचर दे दे। किधर मिलेगा? बैंक ऑफ बड़ौदा के बॉबी पे UPI ऐप पर। मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खोलना पड़ेगा ना? हाँ, लेकिन बॉबी पे के लिए कोई भी बैंक अकाउंट चलेगा। चैंपियंस कीप थिंग्स सिंपल, हाँ? बॉबी पे, 1 UPI ऐप फॉर एवरीवन। ए, तू चीटिंग मत कर। अरे आप आओ तो हर बार हारने पड़े तो चीटिंग गए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को एक बार फिर से झटका लगा है। एक और राज्यसभा सांसद ने ममता का साथ छोड़ दिया है। राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने इस्तीफा सौंप दिया है। राज्यसभा के सभापति से मिलकर सुष्मिता देव ने अपना इस्तीफा दिया। बता दें कि साल 2021 में सुष्मिता देव ने कांग्रेस छोड़कर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का हाथ थामा था, जिसके बाद ममता बनर्जी ने 1 महीने बाद ही उन्हें राज्यसभा भेज दिया था। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज कराई गई है। डायमंड हार्बर थाने में अभिजीत दास ने डायमंड हार्बर हिंसा मामले में फिर से जांच की मांग की है। आपको बता दें कि 2018 के इस मामले में 150 से 160 हथियारबंद हमलावरों ने हमला किया था। अब इस शिकायत में अभिषेक बनर्जी समेत 6 आरोपियों की जांच की मांग की गई है। अभिजीत दास ने इस मामले में राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया है। इस शिकायत के बाद इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। वहीं टीएमसी में बगावत के बाद पार्टी छोड़ने वाले विधायकों की संख्या अब 64 हो गई है। बागी विधायक ऋताब्रता बनर्जी ने आज दावा किया कि उनके पास कम से कम 64 विधायकों का समर्थन है और ये बढ़ने ही वाला है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही विधानसभा अध्यक्ष ने ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी थी, जिसके बाद टीएमसी से बागी होने वाले विधायकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अभी फिलहाल 64 है, 64 एंड रनिंग, 64 एंड काउंटिंग। कल देखा जाएगा। अभी तक फिलहाल 64 बढ़ेगा तो जरूर, मैंने कम होने का कोई बात नहीं है, आगे जाएगा। कांग्रेस और टीएमसी के विलय की अटकलों पर ऋतव्रत बनर्जी ने कहा कि किस बैठक की बात कर रहे हैं। जब विधायक और सांसद हमारे साथ हैं तो बैठक में कौन जा रहा है? हम लोग तो नहीं जा रहे तो कौन जा रहा है? एमपी लोग नहीं जा रहे हैं, 20 एमपी लोकसभा का नहीं जा रहे हैं, राज्यसभा का 2 रिजाइन कर चुके हैं और भी रिजाइन करेंगे, जहां तक मैं सुन रहा हूं। यहाँ 64 एमएलए तो कांग्रेस के साथ नहीं जा रहे हैं, तो एमपी नहीं जा रहे हैं, एमएलए नहीं जा रहे हैं, जहां तक मुझे मालूम है म्यूनिसिपैलिटी भी नहीं जाएगा, जिला परिषद भी नहीं जाएगा, तो कौन जाएगा? हम लोग कांग्रेस के साथ कोई मार्जर का सवाल ही नहीं है। कर्नाटक मंत्रिमंडल विस्तार और नए मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर चल रही खींचतान के बीच कांग्रेस विधायक बसवराज शिवन्नवर ने के लिए मंत्री पद की मांग करते हुए समर्थकों ने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के आवास के बाहर जमकर नारेबाजी की। बसवराज शिवन्नवर वर्तमान में कर्नाटक की ब्यादगी विधानसभा सीट से विधायक हैं और उत्तरी कर्नाटक के हावेरी क्षेत्र से आते हैं। शिवन्नवर के समर्थक लंबे समय से उनके लिए मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि क्षेत्र और वहां की आबादी जो विशेषकर कुरुबा समुदाय की है, उसको मंत्रिमंडल में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। देश में हरित ऊर्जा की दिशा में बढ़ते कदमों को गति देने के उद्देश्य से आज नई दिल्ली में फिक्की ने उत्तरी क्षेत्र के वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं हेतु नवीकरणीय ऊर्जा की ओर परिवर्तन विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम में उद्योग जगत, नीति निर्माताओं और ऊर्जा विशेषज्ञों के बीच वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने, ग्रीन ओपन एक्सेस, ऊर्जा भंडारण, लागत में कमी और नेट जीरो लक्ष्यों को हासिल करने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत में औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्र कुल बिजली खपत का बड़ा हिस्सा रखता है और इन्हें स्वच्छ ऊर्जा की ओर ले जाना ऊर्जा संक्रमण का महत्वपूर्ण आधार माना जा रहा है। सम्मेलन में उद्योगों के लिए 100% हरित ऊर्जा की दिशा में रोड मैप, निवेश के अवसर और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। Have a good mix of a policy which can cater to the needs of the CNI consumers as well as take care of the concerns of the DISCOMs, and also try to see that how do we let's tinker with the grid so that at least the grid stability is maintained and the quality of power is also ensured into the systems. दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने ड्रग्स तस्करी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है। 9 से 10 जून की रात एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के इंटरनेशनल डिपार्चर एरिया में संदिग्ध व्यवहार के आधार पर एक यात्री की जांच की गई। सामान की तलाशी के दौरान नए कपड़ों में छिपाकर रखे गए 20 संदिग्ध पैकेट्स बरामद हुए। मौके पर पहुंची एनसीबी टीम की जांच में हशीश की पुष्टि की गई है। चंद्रबाबू नायडू जी द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, सभी साथियों ने उस पर समर्थन और अपने संवाद और अनुभव के साथ अपनी बातें रखी हैं।
और अनुप्रिया पटेल जी ने पूरे प्रस्ताव को हम सबके बीच में रखा है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इस प्रस्ताव का समर्थन सभी लोग खड़े होकर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन भी करें और इस प्रस्ताव को पास करें। लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, सभी साथियों ने उस पर समर्थन और अपने संवाद और अनुभव के साथ अपनी बातें रखी हैं और अनुप्रिया पटेल जी ने पूरे प्रस्ताव को हम सबके बीच में रखा है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इस प्रस्ताव का समर्थन सभी लोग खड़े होकर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन भी करें और इस प्रस्ताव को पास करें। लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, सभी साथियों ने उस पर समर्थन और अपने संवाद और अनुभव के साथ अपनी बातें रखी हैं और अनुप्रिया पटेल जी ने पूरे प्रस्ताव को हम सबके बीच में रखा है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इस प्रस्ताव का समर्थन सभी लोग खड़े होकर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन भी करें और इस प्रस्ताव को पास करें। लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, सभी साथियों ने उस पर समर्थन और अपने संवाद और अनुभव के साथ अपनी बातें रखी हैं और अनुप्रिया पटेल जी ने पूरे प्रस्ताव को हम सबके बीच में रखा है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इस प्रस्ताव का समर्थन सभी लोग खड़े होकर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन भी करें और इस प्रस्ताव को पास करें। एनडीए नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लेकर आभार प्रस्ताव किया गया और सभी एनडीए नेताओं ने खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया और इस प्रस्ताव को पारित किया। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।